नमो लोये सौहरिहन्ताणम् नमो लोये सौहृदानम् नमो लोये सौभागिर्याम् नमो लोये सौज्यायाम् नमो लोये सौत्रिकावती सावनम् ओंकारमिन्दु संयुक्त नित्यम् ध्यायन्ति योगिनः कामदम् मोक्षदम् च ओंकाराय नमो नमः मङ्गलम् भगवान् मङ्गलम् गौतमोऽग्नि मङ्गलम् कुन्कुण्डारि विजेन्द्रमोसुमङ्गलम् नमः समयसाराय स्वानुभूत्या चकास्ते स्वभावाय भवाय सर्वाः विभावनिदाताय। परमात्म प्रकाश आचार्य भगवान योगिंदु देव रचित परमात्म प्रकाश नो स्वाध्याय આપણે કરી રહ્યા છીએ। એમાં 69 ગાથા સુધી સ્વાધ્યાય આપણે પૂરો કર્યો છે। હવે આજે આગળ 70મી ગાથાથી સ્વાધ્યાય લઈએ છીએ। 70મી ગાથાના ઉपोद्घातમાં કહે છે કે आगे जो सिद्ध निश्चय न कर जन्म मरण आदि जीव के नहीं है तो किसके है। ऐसा शिष्य के प्रश्न करने पर समाधान यह है कि ये सब देह के है। ऐसा कथन करते हैं श्री गुरु कहते हैं। प्रश्न શું કર્યો છે કે શુદ્ધ નિશ્ચય નહીંથી જન્મ મરણ એ બધા જીવના નથી તો પછી કોના છે, અને એના ઉત્તર રૂપે આ ગાથા કહેવામાં આવી છે। તો આપણે ગાથા 70 લઈએ છીએ। देहस्य उद्भवः चरामरणं देहस्य वर्णः विचित्रः देहस्य रोगान् विजानीहि त्वं देहस्य लिंग विचित्रम्। 70મી ગાથાના અન્વયાર્થમાં કહે છે કે હે શિષ્ય, त्वं देहस्य उद्भवः जरा मरणम, हे शिष्य तू देह के जन्म जरा मरण होते हैं अर्थात नया शरीर धरना, विद्यमान शरीर छोड़ना, वृद्धावस्था होना, ये सब देह के जानो। देहस्य विचित्र वर्ण, देह के अनेक तरह के सफेद श्याम हरे पीले लाल रूप 5 वर्ण अथवा ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र ये 4 वर्ण। देहस्य रोगान, देह के वात पित्त कफ आदि अनेक रोग। देहस्य विचित्रम लिंगम, देह के अनेक प्रकार के स्त्रीलिंग पुल्लिंग नपुंसक लिंग रूप चिन्ह को अथवा यति के लिंग को और द्रव्य मन को बीजानी ही जान। सो कहे कि हे शिष्य तू देह के जन्म जरा मरण होते हैं अर्थात नया शरीर धरना और विद्यमान शरीर छोड़ना, वृद्ध अवस्था होना, ये सब देह के जानो। देह के अनेक तरह के सफेद श्याम हरे पीले लाल रूप 5 वर्ण अथवा ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र ये 4 वर्ण। देह के वात पित्त कफ आदि अनेक रोग। देह के अनेक प्रकार के लिंग स्त्रीलिंग पुल्लिंग नपुंसक लिंग रूप चिन्हों अथवा यति के लिंग को और द्रव्य मन को जान। आ બધું દેહનું છે, આત્માનું નથી। ગુજરાતીમાં ગાથા લઈએ। જન્મ મરણ ગણ દેહના, વિવિધ વર્ણ પણ દેહ, વ્યાધિ ગણ તું દેહને, વિવિધ લિંગ પણ દેહ। જન્મ મરણ વर्ण રોગ
અને લિંગ એ બધું દેહનું છે. એ બધું દેહનું છે, એ આત્માનું નથી. હે શિષ્ય, દેહને જન્મ, જરા તથા મરણ છે. જરા એટલે વૃદ્ધાવસ્થા. દેહને જન્મ છે, દેહને વૃદ્ધાવસ્થા છે, અને મરણ પણ કોનું છે? દેહનું છે. દેહને છોડીને એમાંથી જીવ ચાલ્યો જાય છે, બીજી ગતિમાં જાય છે, કે પંચમ ગતિ એવી સિદ્ધ ગતિમાં જાય છે, તો નિર્વાણ પામીને જાય છે. પણ એ બધું દેહનું છે. જીવ તો અવિનાશી છે, ત્રિકાળ રહેવાવાળી વસ્તુ છે. એને જન્મ નથી, મરણ નથી, અને આ વૃદ્ધાવસ્થા એવી અવસ્થા પણ આત્માને નથી. આત્મા ક્યારેય ઉપજતો નથી, ઉત્પન્ન થતો નથી, એટલે એમ એનો જન્મ નથી, અને આત્માનું મૃત્યુ પણ નથી, અને એની કોઈ વૃદ્ધાવસ્થા પણ નથી. એ બધું દેહનું છે, શરીરનું છે, કાયાનું છે. વળી કહે છે કે દેહને અનેક પ્રકારના શ્વેત આદિ વા બ્રાહ્મણ આદિ વર્ણ છે. અનેક પ્રકારના રંગ. વર્ણ શબ્દ જે છે તે બે રીતે વપરાય છે. તો પહેલો અર્થ એ લીધો કે વર્ણ એટલે જે આ 5 રંગ આપણે જે જાણીએ છીએ તે. તો એવા રંગ શરીરના રંગ છે. એ કઈ રંગ આત્માના નથી. અને બીજી રીતે વર્ણ કહીએ તો આપણે બ્રાહ્મણ, ક્ષત્રિય, વૈશ્ય, શુદ્ર એમ વર્ણ કહીએ છીએ. તો એવા વર્ણ પણ આત્માને નથી. વળી રોગ આત્માને નથી. રોગ દેહને છે. એ શરીર સાથે રહેલો આત્મા મિથ્યાત્વને કારણે એમ માને છે કે મને રોગ થયો. વાસ્તવમાં આત્માને કોઈ રોગ થઈ શકતો નથી. દેહને રોગ છે, અને દેહથી તદ્દન ભિન્ન એવો આત્મા એ તો ત્રિકાળ એક સરખો નિરોગી જ છે. એને રોગ લાગુ પડે એવું એમાં કઈ છે જ નહીં. એમાં કોઈ એવો ગુણ નથી કે જેને કારણે એમાં કોઈ રોગ લાગુ પડે. અને દેહને અનેક પ્રકારના લિંગ, અને લિંગમાં પણ બે રીતે લેવામાં આવ્યું. એક તો લિંગ એટલે સ્ત્રીનું લિંગ, પુરુષનું લિંગ અથવા તો નપુંસકનું લિંગ, તો એ દેહના જ છે. અને બીજો લિંગનો અર્થ એ રીતે પણ કરવામાં આવે છે કે આપણે જૈન દર્શનમાં 3 પ્રકારે લિંગ જે માનીએ છીએ. એક તો મુનિનું લિંગ માનીએ છીએ, બીજું આર્જિકાનું લિંગ, અને ત્રીજું શ્રાવકનું લિંગ માનીએ છીએ. શ્રાવિકાનું લિંગ પણ એ આર્જિકાના લિંગ જેવી રીતે જ હોય છે. એટલે શ્રાવકના લિંગ જયારે કયા ત્યારે એ વસ્ત્ર સહિત છે. મુનિનું છે તો એ નગ્ન છે. અને આર્જિકા અથવા શ્રાવિકાના છે એ પણ વસ્ત્ર સહિત હોય છે. એમ 3 પ્રકારે આપણે લિંગ માનીએ છીએ. એટલે એ પણ અર્થ અહીંયા આવી જાય છે. તો પણ એ બધું પણ કોનું છે? એ આત્માનું ક્યાં છે? આત્માને એ લિંગ નથી. એનાથી ભગવાન આત્મા તો જુદો છે. વધારે વિસ્તાર કરતા સમજાવે છે કે શુદ્ધ આત્માની સમ્યક શ્રદ્ધાન, જ્ઞાન તથા આચરણ રૂપ અભેદ રત્નત્રયની ભાવનાથી પ્રતિકૂળ અથવા તો વિપરીત એવા રાગ, દ્વેષ અને મોહ વડે કર્મનો સંચય કરાય છે. શુદ્ધ આત્માની ભાવના તો નિશ્ચય રત્નત્રય રૂપ છે. સમ્યક દર્શન, સમ્યક જ્ઞાન, સમ્યક ચારિત્ર એવી અભેદ રત્નત્રયની ભાવના એ આત્માની ભાવના છે. શુદ્ધ આત્મતત્વનું લક્ષ્ય કરીએ અને જે ભાવ પ્રગટ થાય છે એ ભાવ તો સમ્યક દર્શન, સમ્યક જ્ઞાન, સમ્યક ચારિત્ર રૂપ છે. એવા એ નિશ્ચયથી રત્નત્રય છે એ રૂપ ભાવ છે, એવી ભાવના છે. અને એનાથી વિપરીત, એનાથી પ્રતિકૂળ, જે એના સ્વભાવમાં નથી, જે એના ગુણને કારણે નથી, એવા રાગ, દ્વેષ અને મોહ એના પરિણામ કરે છે, એવા ભાવ કરે છે, તો જીવને કર્મનો બંધ પડે છે.
અને કર્મનો બંધ પડે છે તો પછી એ કર્મ જ્યારે ઉદયમાં આવે છે તો એ કર્મોદયથી એને આ જન્મ જરા મરણ આદિ થાય છે. અને તે ધર્મો વ્યવહારનયથી જીવના છે. આ જે વર્ણન કરવામાં આવ્યું એ બધા અધર્મ વ્યવહારનયથી જીવના છે, તો પણ નિશ્ચયથી દેહના જ છે એમ જાણવું જોઈએ. જીવના વ્યવહારથી એટલા માટે કયા કે જીવની પર્યાયમાં એ થાય છે, અને જીવને બંને રીતે છે. એક તો એની જે પર્યાય થઈ છે એવો એને ભાવ છે. જેમ કે એ મનુષ્ય થયો છે કે દેવ થયો છે તો એનો ભાવ પણ પોતે મનુષ્ય છે એવો છે. પોતે કાળો મનુષ્ય થયો છે તો એનો ભાવ પણ એવો છે, પોતે કાળો છે. શ્વેત છે તો એવો જ ભાવ છે. વળી એનું ગોત્ર એવું છે કે ઉચ્ચ ગોત્ર છે કે બ્રાહ્મણનું કે એવું, તો એને એવો ભાવ છે કે હું આ ઉચ્ચ ગોત્ર છું. એટલે જે ભાવ છે એ એવા છે, તો એ જીવની પર્યાયમાં ભાવ છે. અને બીજું બધું જે છે એ તો પૂતગળનું છે, એ તો દેહનું છે. એટલે જીવની એવી પર્યાય છે, એવા ભાવ રૂપ એનું પરિણમન થાય છે ને, એટલે એને કારણે જે બંધ પડે છે તો એ બંધના ઉદય પણ એની સમીપમાં પ્રવર્તે છે. એટલે એ અપેક્ષાથી વ્યવહારથી અને જીવના કહેવાય. માત્ર એકલા દેહના છે એમ નહીં, પણ વ્યવહારથી એ જીવના છે. તો પણ નિશ્ચયથી દેહના જ છે એમ જાણવું જોઈએ. કેમ કે એ એક સરખા રહેતા નથી. વળી એ કર્મના ઉદય સાથે સંબંધ ધરાવે છે તો એની નિજરા પણ થઈ જાય છે. અને એ નિજરા થતા જીવ એ બધા ભાવોને છોડીને એ બીજી ગતિમાં પણ જાય છે ને. એટલે નિશ્ચયથી જો એ જીવના હોત તો એની સાથે એ બધું આવત, પણ એમ તો બનતું નથી. એ બધું બદલાઈ જાય છે. અને જો એ પંચમ ગતિને એટલે સિદ્ધ ગતિને પ્રાપ્ત કરે છે તો એમાંનું કાંઈ રહેતું નથી. એટલે એ દેહ સાથે સંબંધ ધરાવે છે, માટે નિશ્ચયથી દેહના જ છે, વ્યવહારથી જીવના છે એમ જાણવું જોઈએ. જ્યારે આ જીવ દેહની મમતા રૂપ વિકલ્પ જાળને તજીને સર્વ પ્રકારે ગ્રહણ કરવા યોગ્ય વિતરાગ સદા આનંદ એક રૂપે પરિણમે છે, વિતરાગ ભાવે પરિણમે છે, આનંદની દશામાં એ પરિણમે છે, એવી એની પર્યાય થાય છે, તો એ ભાવ જીવનો છે. અને એ ભાવ એના સ્વરૂપને અનુસરીને થાય છે. અને એ વખતે એને આ દેહની મમતા રૂપ બધા જ વિકલ્પો છૂટી જાય છે. પોતાથી પરના લક્ષ્ય થતા જે વિકલ્પો હતા એ બધાનું લક્ષ છૂટી અને સ્વનું લક્ષ થાય છે, તો એને વિતરાગ ભાવ થાય છે, વિતરાગ પરિણામ થાય છે, કસાય રહિત દશા થાય છે. એ આનંદની દશા છે ને એવી આનંદની એક દશા રૂપે એ પરિણમે છે. ત્યારે પોતાને શુદ્ધ આત્મા જ ઉપાદે છે એમ ભાવાર્થ છે. અને ત્યારે જ એને ખરેખર એ વખતે જ આત્મા ઉપાધિ થાય છે, જ્યારે એવા પોતાના સ્વરૂપનું લક્ષ કરીને ધ્રુવ તરફ ઢળીને એવા એ ભાવે થાય છે, ત્યારે જ એને શુદ્ધાત્મા ઉપાધિ છે એમ કહેવાય છે. અને એ વખતે એને એવા પરિણામ, નિર્મળ પરિણામ, વિતરાગી પરિણામ થાય છે, એ એની દશામાં થાય છે. તો એ એનો ભાવાર્થ કયો. તો આપણે આ ગાથા ઉપર પૂજ્ય ગુરુદેવ કાંજી સ્વામીએ ઘણો વિસ્તાર કર્યો છે, તો એ બધું સમજીએ. પરમાત્મા પ્રકાશ પ્રવચન ભાગ બીજો, વર્ડ ટુ વર્ડ, એના પાના નંબર 236. પરમાત્મા પ્રકાશ 70 गाथा क्या कहते हैं तुम्हारे 17 17 आगे जो निश्चय नहीं कर
जन्म मरण आदि जीव के नहीं है। जन्म मरण ये जीव के नहीं है। जीव तो त्रिकाली ध्रुव स्वरूप, उसको जन्म मरण नहीं, रोग नहीं, वृद्धावस्था नहीं, ब्राह्मण क्षत्रिय आदि वर्णना भेद नहीं, तो किसके है? ऐसा शिष्य का प्रश्न करने पर समाधान यह है। क्या लिया? शिष्य का ऐसा प्रश्न है जिसको जानने की जिज्ञासा है कि भगवान आत्मा को जब जन्म मरण संसार नहीं तो है किसका ये जन्म मरण? उसका समाधान देह जन्मरण देह विचितु देह रोज ज्ञानी तू देह लिंग विचितु। हे शिष्य, तू देह के जन्म जरा मरण होते हैं, अर्थात नया शरीर धरना, विद्वान शरीर छोड़ना, ये सब शरीर की दशा है। आत्मा में शरीर है नहीं। हाँ, इतनी बात लेना ही ना है। वृद्धावस्था छोड़ होना ये तो देह के जानो। हाँ, देह के अनेक तरह के सफेद, श्याम, हरे, पीले, लाल वर्ण ये आत्मा में नहीं, और ब्राह्मण क्षत्रिय वे क्षुद्र आत्मा में नहीं। देह के वात पित्त कफ आदि रोग है, देह का है। भगवान आत्मा में तो देह है नहीं। पूर्णानंद आत्मा में तो विकारे है नहीं। और सम्यक दर्शन का विषय जो पूर्ण देह, पूर्ण आत्मा, उसमें तो पर्याय है नहीं। समझ में आया? सम्यक दर्शन जो है पर्याय, निर्विकल्प श्रद्धा, साथ में आनंद की पर्याय उत्पन्न होती है। ऐसे सम्यक दर्शन का जो विषय है वो तो त्रिकाली शुद्ध आत्मा उसका विषय है। जिसमें जन्म मरण तो नहीं, जिसमें विकार नहीं, जिसमें पर्याय नहीं। हाँ, ऐसी चीज है। सम्यक दर्शन की जो पर्याय है उसका विषय त्रिकाल है, पर वो पर्याय द्रव्य में नहीं। हाँ, समझ में आया? पर्याय पर्याय में है, द्रव्य द्रव्य में है। वस्तु सच्चिदानंद प्रभु, सच्चिदानंद प्रभु ध्रुव शाश्वत वस्तु। त्रिकाली भूतार्थ पदार्थ, जिसको 11वीं गाथा में भूतार्थ कहा। भूतार्थ का नाम सत्यार्थ, वो त्रिकाली वस्तु जी ध्रुव ही सत्यार्थ है। पर्याय भी असत्यार्थ है। त्रिकाल की अपेक्षा से पर्याय को भी असत्यार्थ कहा है और भूतार्थ कहा है। गौण करके, अभाव करके असत्य है ऐसा नहीं है।
पर्याय को गौण करके सत्यार कहा है, त्रिकाल में नहीं। पर पर्याय को गौण करके किया तो पर्याय नहीं है, ऐसा नहीं है। त्रिकाली विनायक भाव चिदानंद उसको विषय बनाने में सम्यक दर्शन है, तो सम्यक दर्शन उसका विषय बनाते हैं, तो सम्यक दर्शन पर्याय तो भूतार्थ है कि त्रिकाल की अपेक्षा है। पर्याय की अपेक्षा भूतार्थ है, पर विषय जो है सम्यक दर्शन का वो त्रिकाल भूतार्थ है। बात ऐसी भाई चीज है। ये कहते हैं देह के सब विकारा, जन्म मरणादि आत्मा में क्या, बाल यौवन वृद्धावस्था वो तो सब शरीर की है, भगवान क्या बाल यौवन वृद्धा है। हाँ, ये तो काल कहा था थोड़ा। बाल अवस्था है तो बहिर राज आदि को अपना मानना वो बाल अवस्था है, शरीर की बाल अवस्था ही आत्मा में नहीं है। समझ में आया कि वो चीज में नहीं, ऐसा राग पुण्य पाप का विकल्प वो अपना मानना बहिर है, चैतन्य का स्वभाव में वो नहीं, बहिर है अपने मानना, ये बहिरात्मा ये बालक है। समझ में आया? और वस्तु भगवान पूर्णानंद स्वरूप अंतरात्मा वस्तु, उसकी अनुभव में दृष्टि होना, उसकी स्वसन्मुख की दृष्टि में उपाधि आना, उसको अंतरात्मा, उसको युवान दशा कहते हैं। ये जीवनी युवान दशा है। समझ में आया? और भगवान आत्मा अपनी पर्याय में परमात्मा दशा प्रकट करे, पर्याय में परमात्मा तो वस्तु है, परमात्मा प्रकाश से चलते हैं ना, वस्तु है तो परमात्मा स्वरूप ही है, अनादि। अभी का भी आत्मा परमात्मा स्वरूप है, भवि का भी आत्मा परमात्मा स्वरूप है, पर वो परमात्मा स्वरूप पर्याय में प्रकट होना, उसका नाम जीव की पक्की अवस्था, वृद्धावस्था कहने में आता है। समझ में आया? वृद्धावस्था ईश्वरीय आत्मा में नहीं, पर्याय में नहीं। नवी व्याख्या है, नवी व्याख्या है नहीं है, अंतर की बात है। ऐसा है भगवान, तेरी चीज क्या है भाई? पूर्णानंद का नाथ प्रभु एक समय में तेरी ध्रुव सत्ता, जिसको शक्ति रूप परमात्मा कहते हैं, जिसको शक्ति रूप मोक्ष कहते हैं, जिसको शास्त्र भाषाएं 14 में अबध आया कि कैसा है भगवान के अबध है, उसकी दृष्टि करना वो जन शासन है। समझ में आया? 15वीं का समखान जो पसई अपान अबध पूछंग अनन्यम
એમાં અબુદ્ધમાં અહીંયા તો લેना है हमारे, ये रात के बंध में है ही नहीं आत्मा। समझ में आया? ऐसा भगवान अबुद्ध स्वरूप परमात्मा शक्ति, शक्ति मोक्ष स्वरूप अबुद्ध कहो तो अबुद्ध का अभाव की नास्ती किया, अस्थि से कहो तो मोक्ष स्वरूप ही है। शक्ति यानी मोक्ष स्वरूप ही है। कौन? आत्मा अनादि। भगवान तेरी मोक्ष अवस्था हो ये दूसरी चीज है, पर शक्ति ने स्वभाव तो मोक्ष स्वरूप ही है। जो मोक्ष स्वरूप शक्ति न हो तो पर्याय में मोक्ष कहां से आएगा? कहीं बाहर से आता है? समझ में आया? जो ये वितराग स्वरूप न हो तो पर्याय में वितरागता कहां से आएगी? कहीं बाहर से आती है? कर्म खरे तो आवे नहीं, ऐसी है ही नहीं। अपना स्वभाव में लीनता करे तो आवे। वो तो आ गया ना अपने, कि अपना स्वभाव की सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की पर्याय में आज मत अंत में आत्मा है। आज में कर्म खरे तो यहाँ होता है, ऐसी बात है ही नहीं। समझ में आया? भगवान आत्मा केवल ज्ञान की पर्याय प्रकट करने में आदि आत्मा, मध्य आत्मा, अंत आत्मा, ये केवल ज्ञान की पर्याय में केवल ज्ञानावरणी का अभाव हो तो केवल ज्ञान होता है, ऐसी अपेक्षा है नहीं। ऐसी चीज है। समझ में आया? तो यहाँ कहते हैं ये देह के आदि सब जानो। वात पित्त कफ आदि अनेक रोग देह के। अरे स्त्री पुलिंग नपुंसक लिंग देह चिन्ह देह के। अरे यति के लिंगी देह का। नग्न दशा कि पंच महावृत का विकल्प, ये सब देह के विकार सब है। समझ में आया? अलिंग गणन में तो कहा है, विष्णु है। हाँ, यति का बाह्यलिंग जिसमें नहीं, इसको अलिंग आत्मा कहते हैं। समझ में आया? 70वां बोले, विष बोले ना, विष प्रवचन सार 172 गाथा, 72 कहते हैं उसका। विष बोले अलिंगन, उसमें 70 में बोला है यति का बायलिंग जिसमें नहीं, इसको हम भगवान आत्मा कहते हैं। अरे तो नहीं तो आगे लेगा, आगे लेगा। भावलिंग है या आत्मा में नहीं? कितने में गाथा जो 88 गाथा है। द्रव्यलिंग तो वह सर्वथा ही नहीं। भगवान आत्मा में द्रव्यलिंग आखिर की बात है। 88 गाथा 2-8 उसमें पीछे छेल आखिर की लिटी 3। द्रव्यलिंग तो वह सर्वथा ही नहीं। नग्नपणा ने पंच महावृत का विकल्प ये सब द्रव्यलिंग है। 88 आखिर की 3-4 लिटी।
લીટી कहते हैं पंक्ति। भ्रष्ट 84। हाँ हाँ हाँ, ત્યાં ચોરસ है, दूसरा होगा 93 है। हाँ हाँ 93 है। क्या कहते हैं, द्रव्यलिंग तो सर्वथा ही नहीं और वितराग निर्विकल्प समाधि भावलिंग, यद्यपि देखो वितराग निर्विकल्प मोक्ष का मार्ग निश्चय ये भावलिंग शुद्ध आत्म स्वरूप के साधक है, इसलिए उपचार नहीं कर जीव का स्वरूप कहा जाता है, उपचार से है। हाँ 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 हाँ, तो पर्याय है न, मोक्ष का मार्ग की भी पर्याय है। निश्चय स्वभाव का अनुभव दृष्टि ज्ञान ने रमता, ऐसा जो मोक्ष मार्ग निर्विकल्प समाधि, निर्विकल्प शांति, विकल्प विनानी निर्विकल्प वितरागी शांति, तो ये भावलिंग भी जीव में नहीं, लोग पर्याय में। हाँ हाँ, समझ में आया? मार्ग भैया बहुत सूक्ष्म है भाई, जिनवर का मार्ग लोग को ये बाह्य से कल्प लिया है, ऐसी चीज नहीं है। जो भगवान आत्मा अबद्ध स्वरूप है, मुक्त स्वरूप है, ध्रुव स्वरूप है, सामान स्वरूप है, उसमें मोक्ष का मार्ग की निर्विकल्प दिशा, द्रव्यलिंग तो है नहीं, भावलिंग है, साधकपणे पर्याय में, वस्तु में नहीं। खरेखर तो भावलिंग जी निर्विकल्प आत्मा का अनुभव जीविता की पर्याय, वो द्रव्य को छूती नहीं और द्रव्य पर्याय को छूती नहीं। आऊं मार्ग से पूर्ण, सामान पर्याय में छू जाए तो सामान का नाश हो जाए, एक समय की पर्याय बदलती है, बेगा यूं भी बदल जाए। हाँ हाँ, समझ में आया? हाँ, ये कहने जीव का स्वरूप कहा जाता है, तो भी परम शुद्ध निश्चय नहीं कर, भावलिंग भी जीव का नहीं। हाँ हाँ हाँ, क्या बताना है? सम्यक दर्शन का जो विषय है वो तो भावलिंग की पर्याय से भी रहित है। समझ में आया? भावलिंग जो मोक्ष का मार्ग, निश्चय मोक्ष का मार्ग, ये वितराग पर्याय, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, तीनों वितरागी पर्याय है, ये मोक्ष का मार्ग है। पण वो पर्याय में है। આવી વાત कौन कौन आचार दिगंबर दर्शन में सिवाय क्या है नहीं। समझ में आया? हाँ हाँ हाँ, कर्णलोक नो मास जीव नहीं, जीव का नहीं, द्रव्य का नहीं, जीव न आई 68 गाथा में, 68 गाथा में आ गया है, 68 है ना। उपजई नवी मरई बंधु न मोखू करी, जीवो जीवो जीव इसको हम कहते हैं, जिनेश्वर हम कहते हैं। देखो जीवो परमथे जोइया ये जीणभर એવું ભણી ત્રણલોકના નાદ जिनेश्वर सभा बीच में गणधर ने इंद्रोनी सभा में
ચક્રવર્તી ને વાસુદેવ બળદેવની સભામાં હાજર છે. ત્યાં ભગવાન એમ કહેતે તો જીણવાર એવું ભણે जीवो एने कहिए कि जिसमें मोक्ष की पर्याय नहीं, मोक्ष का मार्ग जीव करते नहीं. पर्याय करते हैं. समझ में आया? मार्ग सूक्ष्म में भाई तो जैन दर्शन है. जैन दर्शन ही विश्व दर्शन है. दुनिया सबको मिलाकर विश्व दर्शन कहते हैं. ऐसा है नहीं. ऐसा संबंध में कोई साथ होता ही नहीं है. जैन विश्व दर्शन, विश्व नाम समस्त शक्ति का पिंड प्रभु, उसका दर्शन वो जैन दर्शन है. तो कहा ने 15 में जो पसई अपाण जे कोई कुंकुंडाचार कहते हैं सर्वज्ञ परमेश्वर एम फरमाते थे. हम संदेश लेकर आए हैं. कुंकुंडाचार तो गए थे ना भगवान पास, 8 दिन रहे थे. भगवान एम फरमाते थे कि जे कोई आत्मा को अबध देखे, पर्याय में राग का संबंध नहीं, वस्तु भिन्न है तद्दन, ऐसा अबध देखे कि पसई जन शासन संबंध. ये जैन शासन सर्व देखते हैं. जो राग को दिखे नहीं, निमित्त को दिखे नहीं, पर्याय को दिखे नहीं. जी मुक्त स्वरूप प्रभु છે अनादि. पर्याय में जरी राग का संबंध है, वस्तु में है नहीं. पर्याय में राग का संबंध कहने में आता है, वस्तु में है नहीं. ये वस्तु वो अबद्ध है, उसको पसई. जे उसको देखते हैं, देखने के काल में वो वस्तु अबद्ध दिखा आई दिखने में, वो जैन शासन है. ये पर्याय में जैन शासन उसको कहते हैं, वस्तु में नहीं. जैन शासन वितरागी पर्याय है, पर वो पिकारी को देखते हैं जो वितरागी पर्याय हुई, वो जैन शासन. पर वो पर्याय भी द्रव्य में नहीं. देवीलाल जी बात कैसे है भगवान? अरे तुम छोटा नहीं बड़ा है प्रभु, तेरी शक्ति का महात्म क्या कहे. प्रभु के हम भी पूरा कह सकते नहीं. समझ में आया? 12 में बात आई है, थूल आई है एम कहते हैं. 12 में पंडित जी 14 पूर्व पंचायत जाई में है. 12 में बात थूल आई है. वितराग वाणी का, वाणी में आया, उसमें अनंत में भाग देखने में आया, इससे अनंत में भाग वाणी में आया, उससे अनंत में भागे गणधर आगे मृचा. एवो भगवान निर्विकल्प आनंद का नाद प्रभु, सुख का साहिबा, सुख नो भंडार प्रभु है. उसमें जैन शासन की पर्याय उसमें नहीं. बराबर जैन शासन पर्याय में है.
समझ में आया? એવું कहा ने नवी उपज है। भगवान आत्मा तो उत्पात में आता ही नहीं, जन्म तो नहीं, पर उत्पात वही ध्रुव युक्तम सत, तो उत्पात में ध्रुव आता ही नहीं, एम कहते हैं। भाई भगवान का मार गया જેને એકાવતારી ઇન્દ્ર જેને સાંભળે છે, શકરેન્દ્ર પહેલા દેવલોકના ઇન્દ્ર 32 લાખ તો વૈમાન છે, એક એક વૈમાન में અસંખ્ય તો દેવ છે, એનો સાહેબો શકરેન્દ્ર અત્યારે એકાવતારી છે। એકાવતારી સમજते एक भवतारी। ये शकरेंद्र एक भवतारी है, भगवान की वाणी में आया है, शास्त्र में ही है। और इसकी इंद्राणी एक भवतारी है। स्त्री का देह है, उत्पन्न हुआ इंद्राणी तब तो मिथ्या दृष्टि थी। इंद्राणी पणे उत्पन्न हुआ तो मिथ्या दृष्टि, स्त्री पणे संचित उत्पन्न होता नहीं। पण पीछे इंद्रनी साथ भगवान का जन्म महोत्सव कल्याण में जाते थे, उसमें उसको अंतर में भान हो गया। और उससे नहीं हो, अपने से नहीं तो सब देखते हैं, तो अंदर में ऐसा जिसकी पुण्य प्रकृति का इतना वैभव, मान थम चार बाजू, आम जैनी सभा, इंद्र रचे तो इंद्र ने विस्मय हो जाए कि कैसी रचना हो गई। हम करते से उससे रचना दूसरी हो गई। ये भगवान का तीर्थंकर का पुण्य है, कैसे हो गई। इसमें इंद्र बैठते हैं तो सुनते हैं तो आ बात कहते हैं भगवान। प्रभु तेरा जीव जो है ये उत्पात की पर्याय में आता नहीं, नाथ ये व्यय की पर्याय में आता नहीं, ये बंद मोक्ष को करते नहीं। समझ में आया है? जीवो इन्हें जीव कहते हैं, जो पर्याय को जीव नहीं कहा गया। समझ में आया? त्रिकाली सदानंद प्रभु चिदानंद भोपाल की राजधानी अनेका, उसमें आते न हो इतरा की वाणी, चिदानंद भोपाल की राजधानी इतरा की वाणी, चिदानंद भोपाल की राजधानी बताते हैं। भैया ऐसी बात है यहाँ तो क्या तेरी महिमा के प्रभु कहते हैं, हम इसको जीव कहते हैं। कि जो जीव मोक्ष ने मोक्ष का कारण की पर्याय भी करते नहीं, जो बंद ने बंद का कारण का तो करते नहीं, पर मोक्ष ने मोक्ष का मार्ग को भी करते नहीं, इसको हम जीव कहते हैं। समझ में आया? जिसको जीव कहो, हमें तो धर्म करना है। हाँ, धर्म तो उससे होता है। ये त्रिकाली जीव मोक्ष का करने वाला नहीं, ऐसा द्रव्य है, उसकी दृष्टि करना, उसमें लीन होना, वो धर्म है। ये तो शेष स्पष्टीकरण कर सकता है। देखो ने परमात्मा प्रकाश, यही चीज जो है वही परमात्मा स्वरूप है। बराबर ध्रुव हो ध्रुव, उत्पाद भय विना की चीज जो है
ये परमात्मा स्वरूप है प्रभु, विद्यमान परमात्मा हो, अनादि परमात्मा, नया नहीं होता, ये तो परमात्मा स्वरूप ही है। हाँ, उसकी दृष्टि वो तरफ करना, स्वीकार करना, उसका नाम सम्यक सत दर्शन। सत जैसा है ऐसा दर्शन करना वो सत दर्शन है। हाँ, वस्तु ऐसी भगवान कुंकुंदाचार्य, अमृतचंद्राचार्य, वही पण संतो दिगंबर संतो ही तो जगत ना न्याल કરીને કહે है। हाँ, तो है अनादि वस्तु भगवान संतो ही। टिकाली काल में टिकाल की जानने का विरह नहीं होता। क्या किया? तरण काल जो है जगत, तो उसमें तरण काल का जानने वाला का विरह नहीं होता। अनादि से तीन काल का जानने वाला है। समझ में आया? तीन काल में, तीनों काल में तीन काल का जानने वाला का विरह कभी नहीं होता। अनादि त्रिकाल ज्ञानी है, बौद्ध में है, भविष्य में ऐसे। अनादि त्रिकाल का जानने वाला सर्वज्ञ अनादि का है। त्रिकाल जैसी चीज है तो त्रिकाल जानने वाला ही साथ में त्रिकाल है। जी हम तो वही कहते थे, मूर्ति को उठाते हैं ना, तो उसको हम कहते थे कि भगवान ऐसे न करो। जिन त्रिकाली भगवान है ऐसी त्रिकाली प्रतिमा भी है। स्वर्ग में शाश्वत प्रतिमा त्रिकाली है। जिन त्रिकाली सर्वज्ञ है, कोई समय सर्वज्ञ का विरह नहीं, तो कोई समय उसका प्रतिबिंब का विरह नहीं। समझ में आया? प्रश्न चलते थे ना, बहुत चलते, संप्रदाय में भी। एक तो ऐसा प्रश्न आया था बहुत वर्ष पहले, 34 की साल। तो एक शेठ था, ग्रस्त था, अभी तो बहुत ग्रस्त हो गए हैं। તે વખતે 10 લાખ રૂપિયા बहुत कहने थे, 70 वर्ष पहले, 70 कहते हैं, 70 में तो बहुत थोड़ा पैसा, तो वो ग्रस्त था 10 लाख पैसा दे दियो 70 वर्ष पहले। હવે तो साधारण बायु 5 लाख 10 लाख होता है। तो ये ग्रस्त है, तो उसकी दृष्टि अचानक ऐसी थी नहीं। वो पहले हम कहते थे कि जब लग मिथ्या दृष्टि हो तब लग मूर्ति का पूजा होती है। सम्यक दर्शन पीछे मूर्ति की पूजा नहीं, मूर्ति नहीं। समझो, પછી मैं उत्तर दिया, सुनो। वो कहे कि जब लग मिथ्या दृष्टि है तब लग प्रतिमा की पूजा हो, सम्यक दर्शन पीछे पूजा नहीं, भक्ति का पूजा नहीं, प्रतिमा न हो। सुनो भैया, मिथ्या दृष्टि को निक्षेप होता ही नहीं है सामने। जब सम्यक दर्शन होता है तब शुद्ध ज्ञान होता है, तो शुद्ध ज्ञान का भेद निश्चय व्यवहार नहीं होता है। ये व्यवहार नहीं का विषय निक्षेप संकेत ही होता है। पंडित जी, संकेती कोई पूज्य प्रतिमा है, क्योंकि उसको शुद्ध ज्ञान हुआ। त्रिकाल को जाने, पर्याय को जाने, राग को जाने, पर को जाने, तो उसकी जो व्यवहार नहीं है निश्चय शुद्ध ज्ञान तो प्रमाण है, उसका भेद निश्चय ने व्यवहार तो भेद है। शुद्ध ज्ञान अवयवी है और निश्चय व्यवहार उसका अवयव भेद है। तो भेद में जो व्यवहार नहीं है तब सामे निक्षेप विनय का भेद जो स्थापना, विनय का भेद है ना,
नाम था अपना गिनी का ज्ञान का भेद आई रहा, ज्ञान का भेद आई आया नीचे, गिनी का भेद क्या, तो ज्ञानी को ही व्यवहार नीचे प्रतिमा पूजनी यथार्थ उसकी प्रति में आती है। ये बोले शुभ भाव। समझ में आया? हम तो थे उसमें न पहले, तो हमारी लाइन तो दूसरी थी अंदर से। उसने कहा नहीं, प्रतिमा का पूजन वो प्रतिमा का मानना यथार्थ संकीर्तिक होता है। जिसको सम्यक ज्ञान हुआ उसमें शुद्ध ज्ञान हुआ, शुद्ध ज्ञान का भेद व्यवहार नहीं हुई, उसको ज्ञानी का भेद स्थापना व्यवहार नहीं का विषय उसको है। अज्ञानी को निक्षेप विक्षेप होता ही नहीं है। समझ में आया? हाँ, तो अंदर से आती थी ना, पूर्वी की बात थी ना अंदर। ये तो क्या सिखाते नहीं, गुरु पास थे ही नहीं। नहीं कि वो बात ऐसी नहीं। समझ में आया? आई तो क्या क्या देखो, ये जिणवर एम कहते हैं, ये जोगी, ये मुनि, ये धर्मात्मा एम कहते हैं। हे धर्मात्मा जिनवर एम कहते हैं कि जीव एने हमें कही कि जी मोक्ष न मार्ग ने मोक्ष ने न करे, वो जीव कहते हैं हमको। पंडित जी समझ में आता है? हाँ, हिंदी तो है। बेंगलोर में भाई पंडित जी अर्थ मुसारा वो नर मानस है। बेंगलोर पंडित बे पंडित थे, तो भाषा हिंदी करते थे, तो ત્યાં तो मराठी सब मराठी करते थे भाषा। वो पंडित बैठे नर्म है, बेंगलोर से है। बेंगलोर में गए 12 लाख का मकान हुआ ना अपना, 12 लाख का मंदिर हुआ, दिगंबर मंदिर 12 लाख का। हम गए थे, बुलाए थे क्या अपना सब हुआ है सोनगढ़ तरफ से। एक जुगराज जी કરીને थानकवासी है, करोड़पति जुगराज जी थानक करोड़पति, उसने 4 लाख न वो वहां की सब दवा है, थानकवासी था 1 करोड़, तो उसने 4 लाख न किया। एक बबू श्वेतांबर थे है, उसने 8 लाख न किया। एक मंदिर में 12 लाख का अपना मंदिर हो दिगंबर, नहीं तो हमको कोई मिल जाते नहीं। श्वेतांबर 12 लाख है क्या? समोसन है, समोसन है। बहुत लोग को बहुत आते हैं देखने को, अनुमति 12 लाख का मंदिर। समझ में आया? आपकी इजाजत से तो बना ये तो बनने की थी बनी है, कोई बना ही नहीं। ऐसी बात है। हमसे कहते हो व्यवहार गए मंदिर बनाते हैं। ये तो भाव होता है ना, शुभ भाव है, बनते हैं उसमें निमित्त कहने में आता है। ये शुभ भाव हुआ तो मंदिर बना, ऐसा नहीं। भैया बनने की लायकात परमाणु में थी, तो परमाणु ये थी एक समय 102 गाथा में प्रवचन सार में लेख है कि दरेक द्रव्य की पर्याय जे समय उत्पन्न उसका वो काल है, जन्म क्षण ऐसा पाठ है। प्रवचन सार 102 गाथा, द्रव्य की जो समय पर्याय उत्पन्न होने वाली है वो उत्पत्ति का काल है, वो काम से उत्पन्न होता है, पर से उत्पन्न होता है, ऐसा है नहीं। हाँ, ये तो दोपहर को चलते हैं, करता चल दोपहर को चलते हैं। हाँ, पर क्या करता ये तो नहीं, दोपहर को तो चले कि कर्म का उदय कर्ता और विकार कर्म ऐसा है नहीं। विकारी परिणाम होता है उसका कर्तव्य और कर्ता कर्म, ऐसा है नहीं।
और विकारी परिणाम करता और कर्म बंधन होता है, कर्म उसका कार्य ऐसा होता नहीं। तो क्या होता ये विकार का कर्ता जीव और विकार का कर्म जीव का पर्याय में। ये तो पर्याय सिद्ध करी नहीं है, यहाँ तो विकार की पर्याय इसमें है नहीं, ये तो पर्याय का करता है। और यहाँ तो फल से भिन्न करना हो तो विकार का करता आत्मा, विकारी पर्याय उसका कर्म। कर्म के लिए विकार हुआ है ऐसा है नहीं, विकारी परिणाम हुआ माटी त्या कर्म बंधन हुआ ऐसा है नहीं। ये परमाणु में इस समय में बंधने की योग्यता से परमाणु बन जाए, ये विकारी परिणाम हुआ वो तो निमित्त मात्र है। बंधन हुआ है उपादान अपनी पर्याय से क्या बंधन हुआ है, ज्ञानावरणी रूप बंधन उसकी पर्याय से, आत्मा के राग किया मुझे नहीं। वस्तु है निमित्त उड़ाया को निमित्त को सिद्ध किया को એટલી વાત है, पर उससे कार्य हुआ है ऐसा है नहीं। वो तो कहा नहीं, कौन से 72 का था समय सा भगवान अमृतचंद्राचार्य कहते हैं कि घड़ा कुंभार से बना ऐसे हम देखते नहीं, माटी से घड़ा बना ऐसे हम देखते हैं। 372 समय सा दोपहर को चलते हैं ना, समझ में आया। अपने स्वभाव को उल्लंघन नहीं करती, इसलिए कुंभार घड़े का उत्पादक है ही नहीं। जो निमित्त उड़ा दिया श्रीकृष्ण जी, निमित्त सिद्ध हुआ, निमित्त है उसमें, पर उससे घड़ा बना है नहीं। मिट्टी कुम्हार के स्वभाव को स्पर्श नहीं करती है, अन्य द्रव्य के स्वभाव से द्रव्य की परिणाम का उत्पाद देखने में नहीं आता। समझ आया? ऐसी शंका नहीं करना चाहिए कि परद्रव्य जीव को रागादि उत्पन्न करते हैं, कि कर्म उदय आया तो राग करना पड़ा उसको, ऐसा है नहीं। ऐसे परद्रव्य जीव को रागादि उत्पन्न करते हैं और अंदरव के द्वारा अंदरव के गुणों का उत्पन्न करने की अयोग्यता है। कुंभार की पर्याय से घड़ा उत्पन्न हो ये अयोग्यता है। माटी की योग्यता है कि घड़ा उत्पन्न करती है। ये माटी करता ने घड़ा का कर्म उसका माटी का है, कुंभार का ये कार्य है नहीं। 372 गाथा बहुत स्पष्ट है। अनद्रव्य अनद्रव्य पाठ, अनद्रव्य थी अनद्रव्य पर्याय कभी तीन काल में उत्पन्न होती नहीं। लोगों गड़बड़ करे बापा एम न हो भाई, जे वस्तु जेम छे ऐसा उसको समझना चाहिए। ऊंची दृष्टि से अनादि काल है कुंभार के सब उत्पन्न नहीं होती क्या? फिर मिट्टी कुंभार के स्वभाव तो नहीं होती, मिट्टी के स्वभाव से उत्पन्न होती है, परिणाम का उत्पन्न होते रह जाता है। चीना की लो ना चीना नहीं गुजराती में है ना चीना वही, इसलिए बता रहे। तो આજનો સ્વાધ્યાય અહીંયા સુધી રાખીએ છીએ। 70મી ગાથાનો વધુ વિસ્તાર આપણે આવતી વખતે સમજીશું। ગુરુદેવે 70મી ગાથા સમજાવતા સમયસાર, પ્રવચનસાર વગેરેની ઘણી બધી ગાથાઓને સાથે સમજાવી દીધી, ઘણી બધી વાત એમણે લીધી, એટલે એમાં ઘણા ન્યાય સાથે સમજાયા। એટલું જ નહીં, આજે તો 68મી ગાથાની વાત પણ એમણે એમાં લઈ લીધી। એટલે
મારી ખાસ બધાને અનુમોદના છે કે ફરીથી આખું પ્રવચન વાંચવું અથવા તો આખો સ્વાધ્યાય ફરીથી કરી લેવો જોઈએ. નહીંતર એમ લાગે કે આપણે સ્વાધ્યાય કરીએ છીએ પણ ખરેખર જે સમજવાનું છે એ ન સમજાય. કેમ કે ગુરુદેવ માત્ર આ ગાથા સમજાવે છે એવું નહીં, પણ એની સાથે બીજી કેટલી બધી ઘણા શાસ્ત્રોની ઘણી વાત પણ કરે છે.